اس بات کو جانیں گے اور سیکھیں گے مجوسیوں کے بارے میں۔ یہ خدا کی طرف سے خاص مقرر کیے گئے تھے، جو کہ خدا کے نشانات کو جو آسمان پر خدا اپنے نبیوں کو اور لوگوں کو نشانوں کے ذریعے سے آگاہی دیتا تھا۔ پرانے عہد کے لوگ یا نوح کے بعد کے لوگ یا اسی قبل کے لوگ آسمان پر ستاروں اور ان کی موومنٹ اور اجرام فلکیات، علم نجوم، اس پر بہت انحصار کرتے تھے۔ جیسے دانیل نبی کی کتاب، حزقیل نبی کی کتاب، دارا بادشاہ، نبوکدنصر بادشاہ اور دیگر ملک فارس اور بابل کے بادشاہ، نہمیہ کے دور کے بادشاہ، ان نشانات کو سمجھنے کے لیے جرام فلکیات کے ماہر، نجومی، غیاب دان ان کو اپنے محل میں رکھتے تھے اور گاہے بگاہے ان سے معلومات حاصل کرتے۔ خوابوں کی تعبیر ہو یا دنیا میں کوئی آسمان پر ایسی نشانات رونما ہو رہے ہوں تو ان کے بابت اس زمانہ کے جو بادشاہ تھے اس علم نجوم اور اجرام فلکیات اور غیب دانوں کو بلا کر پوچھا کرتے تھے۔ ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے دین اور مذہب میں اسے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اگر ہم کلام مقدس کی روح سے دیکھیں، خداوند نے اس دنیا میں ایسے ماہرین پیدا کیے، ایسے فہم اور دانش اور دانائی سے منور لوگوں کو اس دنیا میں رکھا ہے، جو خدا کی ذات پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن خدا کے نبیوں کی بھیجی ہوئی الہامی کتابوں پر یقین نہیں کرتے۔ ان کا اپنا دین، اپنا مذہب، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ اور رومیو کے کتاب میں ہم پڑھتے ہیں پالوس رسول فرماتا ہے کہ ان کا انصاف ان کے دین کے مطابق ہوگا۔ مجوسی کے بارے میں عموماً ہم ایک کانسیپٹ ہے وہ دین کا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ متی کے انجیل دو باب اس کی پہلی آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ذکر ہے وہاں پر لکھا ہے کہ پورب سے کئی مجوسی، اور کئی مجوسی جو ہیں مختلف اوقات میں خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور اس کو نذرانے پیش کیے اور ان کو فرشتے سے ہدایت ملی۔ لیکن کلام مقدس میں ہمیں یہ تین ملتے ہیں جو تین نذرانے لے کر آتے ہیں، اور ان تینوں ہی کو جبرائیل فرشتہ آ کر ان کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے کہ تم واپس ہیرودیس کے پاس مت جانا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس آ کر اسے پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ اس سارے واقعہ سے ہم بخوبی واقف ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہیرودیس ڈر گیا، خوف زدہ ہو کر گھبرا گیا۔ اس کا بھی ایک سبب تھا، وہ اس لیے نہیں ڈرا کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھا کہ وہ 2 نمبر طریقے سے بادشاہ بنا تھا۔ اس کو ایک فوج دے دی گئی تھی کہ فوج دے اور ان علاقوں کو فتح کر دے،
गलील के नार से तो यहूदिया के इलाकों को फतह कर ले, अगर तू फतह कर लेगा तो तू यहूदियों का बादशाह बन जाएगा। ये नाम नहाद बादशाह था, हकीकत में यहूदियों का बादशाह नहीं था। ये एक बकायदा तौर पर एक पूरी इसके ऊपर रिसर्च है जो हमारे पास मौजूद है, इससे कबल मैं बता चुका हूँ। लेकिन इस पूछगीछ के अंदर, उसकी घबराहट के अंदर एक पैगाम भी है। उसने कहा कि जाओ यहूदियों को कि जो शरीयत के आलम हैं, काहिनों को बुलाओ, उनसे पूछो ये क्या वाक़या। उनको जब बुलाया गया तो मीका नबी की पेशन गोई यहाँ पर पूरी हुई हमें दिखाई देती। पेशन गोइयों का पूरा होना, मुख्तलिफ वाक़यात का होना, उनके साथ एक गहरा ताल्लुक होता है। और इस ताल्लुक से पेशन गोई को हम देखते हैं कि इजहार होता है। और यहाँ पर शर्रा के आलम काहिन आकर बताते हैं कि मीका नबी ने ये पेशन गोई की थी। इसका 5वां बाब उसकी दूसरी आयत में कि बैतलहम में, यहूदा के इलाका में, यहूदा में से एक सरदार निकलेगा, एक बादशाह निकलेगा, एक रूनुमा होगा, वो मसीह खुदावंद होगा और वही यहूदियों का बादशाह होगा। और इस पेशन गोई को हम पढ़ सकते हैं मीका की किताब में, इसका 5वां बाब उसकी दूसरी आयत निकाले, इसको पढ़े। फिर हम इसके बाद हम उन 3 तोहफों की तरफ जाएंगे जो शुक्राने, शुक्रगुजारियां, जो नजराने खुदा के हुजूर में पेश किए गए हैं, इनका क्या ताल्लुक है इन तीनों का। जी। लेकिन ऐ बैतलहम अफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, ये छोटा तो इलाका है, हाँ जी, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबिक हाँ कदीमुल अय्याम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर्द ज़ह से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे, और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा की नाम की बुजुर्गी से गलाबानी करेगा। तो वो गलाबान होगा, रहनुमा होगा, वो निजात दहिंदा होगा। और इसकी गहरी पेशन गोई की यहाँ पर पूरी होती हुई हम देखते हैं। और ऐसे हालात को आप देखें, मुजूसिन का आना, हेरोदेस का घबराना, शर्रा के आलम को बुलाना, उनसे पूछगीछ करना, वो तो अपने तौर पर कि यहूदियों का बादशाह इसको मरवा दे, वो तो बड़ी मुश्किल से यहूदियों के बादशाह होने का टाइटल हेरोदेस लिया था। हेरोदेस एक टाइटल है, नाम है, जैसे फिरौन। फिर हम यहाँ पर देखते हैं वो उनसे कहता है मुजूसियों को कि भाई तुम उसकी तलाश करो, तुम्हें मिल जाए तो मैं भी आऊं और उसको क्या करूं, सजदा करूं। वो तो धोखा दे रहा है, लेकिन खुदावंद जानता है। यहाँ पर जो बात जानने की है वो ये है कि खुदावंद खुदा जराम फलकियात और नजूमियों जो इल्म गैब रखने का दावा रखते उनको इस्तेमाल करता है। ये तो खुदा का काम है, किसी को भी इस्तेमाल करें। आज हम किसी ऐसे शख्स को इस्तेमाल करें तो कलीसिया और दूसरे लोग पीछे पड़ जाते हैं। ये क्या हुआ, कैसे लोगों को तो सामने ले आओ। लेकिन इन फ्रंट हम देखते हैं कि इन मजूसियों को रखा। मजूसियों का जो दीन और मजहब है उसको मजूस कहते हैं। मजूस का मतलब है आग परस्त, आतिश परस्त, जो आग की पूजा करते हैं। ये मजूसी हमारे दौर में भी हमने इस बात को देखा। रजा शाह पहलवी जो बादशाह था ईरान का, उस दौर में यहूदी और मजूसी ईरान में कसरत के साथ पाए जाते थे, और अफगानिस्तान में भी यहूदी और मजूसी बहुत यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
ये मुल्क फारस से इनका ताल्लुक है, यानी कि ईरान से। ईरान में तहरान जगह है, तहरान में एक छोटा कस्बा है, वहां के उस इलाके के ये बादशाह है। और इजराम फल्कियात और इल्म नजूम के ये माहिर है। आज भी आप देखें, सितारों का इल्म जानने वाले आज भी यहाँ मौजूद हैं। आज भी अमेरिका और दीगर ममालिक के लोग चांद में, मरीख में और कौन सा है, वीनस है और दीगर सितारों का जिक्र हम पढ़ते हैं, उस पर सर्च होती है। अय्यूब की किताब में सितारों के इल्मियात का पूरा जिक्र पाया जाता है। आसमान पर निशानात नूह के जमाने में खुदा खुद देता है, अहद बांधता है निशानों के साथ। कौन सा निशान? कि मैं जमीन पर आज के बाद कभी बारिश ना बरसाऊंगा और बारिश से लोगों को हलाक नहीं करूंगा। इसके लिए मैं तुम्हारे साथ एक अहद बांधता हूँ। और कौसे कज़ा को आसमान पर दिखाते हैं, जिसमें 7 रंग पाए जाते हैं। और आज भी हम देखते हैं, हजारों साल गुजर जाने के बावजूद जब बारिश होती है, बारिश के बाद कौसे कज़ा जो है नजर आती है। ये इल्मियात है और ये आतिश परस्त है। मजूस से मजूसी, मजूस का मजहब है, कौम है, दीन है। जैसे हम हिंदू से हिंदुस्तानी, मजूस से मजूसी। और ये वहां से निकलते हैं। और जब इस सितारे को देखते हैं, जब मैं इसके बारे में छानबीन कर रहा था, तो ये तीनों एक जगह पर इकट्ठे होते। क्यों? कि एक ही इलाका के। लेकिन हम ये कहते हैं कई मजूसों का जिक्र जो है वो हिंदुस्तान से भी आए, वो ओमान से भी आए, शाह कबूस के इलाके से भी, और दीगर इलाकों से, वो पूर्व के इलाकों से कई मजूसी आए। लेकिन ये 3 का जिक्र क्यों है? इसलिए कि ये 3 आपस में बैठते मशवरा करते। रात का वक्त है, रोशनी इतनी तेज है जैसे सूरज निकला। इसको मैंने जाना सीखा कि क्या कहते हैं रोशनी किस चीज की। उस सितारे की रात के वक्त क्या आती? रोशनी बहुत ज्यादा थी। और वो कहते हैं कि इतनी रोशनी जिंदगी में हमने नहीं देखी किसी सितारे की, कि हर तरफ, और चांद की रोशनी भी इतनी नहीं है। और इसकी तहकीक वो करते, सोचते हैं, और अपने इल्म से वो इस बात का जिक्र करते हैं कि कोई बादशाह पैदा हुआ है। लेकिन उनके मूवमेंट के साथ जैसे ये तीनों मजूसी मूव करते हैं, तो ये देखते हैं कि सितारा भी मूव कर रहा है। ये कैसी बात? सितारे तो मूव नहीं करते। सितारों के बारे में तो ये है कि उसकी रोशनी जब जमीन तक आती है, हजारों साल लगते हैं उनको जमीन तक पहुंचने में, और उसके बाद वो बुझ जाते हैं। लेकिन ये सितारा मुसलसल चमक रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये चल रहा है। हम तहरान से निकले हैं और इसकी रहनुमाई में चल रहे हैं, आगे आगे हमारे चल रहे हैं। ये अजीब सी बात है। खुदावन गैर मुज़ाहिब के लोग को, इजराम फल्कियत, नजूमियों को, जो हम पसंद नहीं करते, उनको इस्तेमाल करता है। खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। फ़िरौन की हुकूमत में यूसुफ को, नबूकदनेस्सर बादशाह की हुकूमत में किसको? दानियल को, और उसी दौर पर उसके साथियों को इस्तेमाल करता है, उन कौमों के लिए, उन मज़ाहिब के लिए। हम सिर्फ इस तरफ आते हैं, बुझाते हैं। ये तीनों मजूसी इकट्ठे दिलाते, इसलिए इनका जिक्र ज्यादा मशहूर करते हैं। इनको मसीह तक पहुंचते
देखिए इस तारे के रहनुमाई में 1.5 से 2 साल लगे, जो हमें मुकद्दस मत्ती रसूल अपनी तहरीर में बताते हैं। आप पहुंचते, सीधा करते, फरिश्ते की रहनुमाई में वापस लौट जाते हैं, हेरोदेस के पास नहीं जाते, क्योंकि फरिश्ता उनको हिदायत करता है कि तुम हेरोदेस के पास ना जाना, क्योंकि वो इस बच्चे को कत्ल करने की साजिश में है, मारना चाहता है, लालची है, अपने बीवी को भी कत्ल किया, अपने बच्चे को भी कत्ल किया, इतनी हिर्स है, ऐसा ना हो कि बच्चा जवान होकर मेरी जगह बादशाह हो जाए। ऐसा